Welcome back. In the literature section, we have completed everything, including all the chapters, the revision of all the chapters, revision of all the poems, along with the exam related important questions. Now we are moving towards the writing skills in the quick revision. And in the writing skills, you have, if you see, I have put two arrows. One is short and another one is long. So, as per your syllabus, also you have short compositions which include your notice and invitation and replies. And in the long composition, you have letter, report, and article. There is an internal choice in notice, invitation and replies, letter, and there is a choice between article and report. Right? This will be of 4 marks. That is your short compositions, and all your long composition is of 5 marks. Total, it is of 18 marks actually as per your syllabus. And if you wish, you can definitely score 18 on 18 also. ऐसा नहीं है कि किसी के 18 on 18 नहीं आते हैं. If you keep the minute things in your mind, you can definitely score. Now let us begin the revision as per your boards. When it comes to the notice writing, अगर हम लोग notice writing को लेकर चलते हैं, तो notice writing is something where you are informing about that can be any event, that can be any information that you wish to pass, like आपके सोसाइटी में पानी नहीं आने वाला है, बिजली कटेगी थोड़े दिन की थोड़ी देर के लिए, any that kind of information, any competition, seminar, anything that is going to be held in your school. And secondly, there might be another one which can be called as lost and found. In all of them, एक चीज जो है वो कॉमन है, और वो है what, when, where, who, or how. That is the WH family. So let us take if it is an information regarding any event, any competition, any seminar, anything that is going to be held in your area, that is going to be held in your school. तो यू आर गोइंग टू टेल, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, टू whom आर यू गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन. तो जो आपका टू whom है, दैट शुड ऑलवेज बी, इट कैन बी इफ यू वांट टू गिव टू ओनली क्लास 11th and 12th, यू वांट टू गिव टू द होल स्कूल. जैसे हमारी सोसाइटी में अगर पानी जाता है तो ओनली वन पर्टिकुलर टावर को दिया जाता, तो द ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ टावर ए. So to whom you are giving. Then second is what. क्या information है. Then when is that information to be implemented? Like पानी नहीं है तो कब नहीं रहेगा. If there is any competition तो कब होगा, कहाँ होगा. And any other relevant detail. अब मैंने क्या बोला, any other relevant detail. So what is this detail, relevant details? This is like अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो नेक्स्ट मंथ से, आप लोगों के लिए नहीं, दिस इज गोइंग टू बी द रोने वाला पीरियड, बट नेक्स्ट मंथ से स्कूल के अंदर जो है टाइमिंग्स चेंज है, नेक्स्ट मंथ से जो है यूनिफॉर्म चेंज है. तो इन दैट
you are going to write only the information. उसमें हमें बच्चों से कुछ नहीं चाहिए. We are only informing that with effect from 1st March, the school timings are going to change from 8:30 a.m. to 8 a.m. लेकिन अगर it is about a competition, it is about any event, any seminar, any trip to any old age home, anything, उसके अंदर आपको डेट टाइम तो दोगे ही, प्लस यू विल आस्क द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट. उसमें कोई चार्जेस है तो वो दैट कम्स अंडर एनी अदर डिटेल्स. तो जब हम मार्क्स देखते हैं तो फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. तो द फॉर्मेट इज द नेम ऑफ द स्कूल, institution, the word notice in capital, the date, DATE, डेट नहीं लिखनी है, सिर्फ डेट डालनी है, the title, the name who is giving this, and the designation of the person, head boy, head girl, cultural secretary, principal, anyone. देन कंटेंट आपका जो है वो 50 वर्ड्स का होता है, विच इंक्लूड्स द डिटेल्स, व्हाट आई सेड, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom. एन एक्सप्रेशन इज योर लैंग्वेज, योर नो कटिंग फॉर्मूला, क्योंकि ये जो आपका होता है ये प्रिंटेड होता है. एंड इफ एनी बाय चांस आपको कट करना पड़ता है तो आप ये वाला कटिंग यूज नहीं करोगे, आप सिंगल कट डालोगे, बिकॉज दिस इज अ बॉक्स क्वेश्चन. एंड जो आपका बॉक्स है वो भी फॉर्मेट में आता है, बॉक्स के मार्क्स होते हैं. एंड बॉक्स शुड मस्ट बी ड्रॉन विथ पेन एंड स्केल, नॉट ये वाला अंडे नहीं बनाने आपको, यू हैव टू मेक इट विथ पेन एंड स्केल, राइट. So this is the first one, that is an मतलब कि any information, any event, any competition, seminar, any kind of. Whereas in the lost and found आपका यही है what, when, where, what. लेकिन lost and found में either you must have found something, आपको कोई चीज मिली होगी, या आपने कोई चीज खो दी होगी. तो इन द टाइटल यू कैन राइट ईदर लॉस्ट, 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 या मैं तो सिंपल बोलती हूँ लॉस्ट एंड फाउंड लिखो इन कैपिटल बस. नाउ लॉस्ट, आपका एक वॉलेट लॉस्ट है, आपका एक कैलकुलेटर लॉस्ट है. तो इन द लॉस्ट व्हाट वाज लॉस्ट? कैलकुलेटर. तो उसका कलर, उसका मेक यानी कि कैसियो, कोई भी आप जो लिखना चाहते हो वो. देन sometimes we also use a scientific calculator. Then when it was lost, स्कूल में लॉस हुआ तो कहाँ पे लॉस हुआ था? पीटी पीरियड में हुआ था, रिसर्च में हुआ था, डिस्पोजल में हुआ था, लैब में हुआ था, कब, कौन से जगह पर. देन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सिंपल इफ फाउंड, सबमिट at the reception, lost and found section, या फिर to the undersigned. फिर lost में we can also use suitably rewarded. Founder will be suitably rewarded. Now if a calculator is lost, you can reward the person with a chocolate, with a simple 2 rupee or 5 rupee pen. तो रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हो. एंड इफ इट इज फाउंड, आपको कोई चीज मिली है, यू फाउंड अ वॉलेट, उसके अंदर बुक थे, सॉरी उसके अंदर कुछ पैसे थे कुछ, तो आप लिख सकते हो व्हाट वाज फाउंड, वेयर इट वाज फाउंड, व्हेन इट वाज फाउंड. देन आपको उस इंसान को कहां से कलेक्ट करना है. द ओनर कैन कलेक्ट द आइटम from showing by showing his identity,
फ्रॉम द रिसेप्शन, फ्रॉम द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, ये लिखते। देन द नेम विच इज गिवन एंड द डेजिग्नेशन। अब यहां तो हमारे पास डेजिग्नेशन होगा, सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी। लॉस्ट एंड फाउंड में तो हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का नाम और क्लास। जरूरी नहीं है कि यू आर अ कल्चरल सेक्रेटरी और अ हेड बॉय तभी आपको मिला, एक स्टूडेंट को भी मिल सकता है। तो स्टूडेंट का नाम और उसका क्लास, बस उसकी क्लास बस। सो दैट इज हाउ नोटिस राइटिंग हैज टू बी रिटन। याद रखना, यूजिंग द स्केल एंड, मतलब कि पेन इज मैंडेटरी, मेकिंग अ बॉक्स इज मैंडेटरी, फॉर्मेट आपके सामने है, कंटेंट सिंपल रहता है, लैंग्वेज मीन्स आप अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करते हो। दिस इज टू बी नोटिफाइड, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड। फुल स्टॉप जहां लगाना है वो। सो दिस इज हाउ वी डू द नोटिस राइटिंग। याद रखिएगा, यू मे बी हैविंग टू, ईदर इट कैन बी अ सिंपल व्हाट वी कॉल एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, और आपके ऑप्शन में आएगा, लेकिन दोनों में ऑप्शन आएगा, लेकिन नोटिस राइटिंग है, तो इसकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। एंड वेन एवर आई एम गिविंग द टेस्ट, यू नीड टू पुट द बॉक्स विद अ स्केल ओनली। नेक्स्ट आपका जो है इस सेगमेंट के अंदर, अंडर व्हाट वी कॉल एज द शॉर्ट कंपोजिशन, आपका जो है सबसे लंबा आ जाता है, और वो है आपका इनविटेशन एंड रिप्लाईज। बच्चे, end of the session is there, but still I feel you are not confident with invitation and replies. In invitation you have formal, मैं आपको सिर्फ लैंग्वेज बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग उसको अभी भी कंफ्यूज करते हो, बिकॉज समटाइम्स व्हेन द इनविटेशन, नाउ देखिए, आप लोग सब लोग शादियों में जाते हो, और आजकल शादियों का सीजन भी चल रहा है, ठीक है? तो जैसे आपके मैरिज का होता है, या yesterday I went for an हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हमारे यहाँ पे था, तो इट वाज ऑन अ लार्ज स्केल। हाउस वार्मिंग यानी कि गृह प्रवेश, टॉन्शर यानी कि मुंडन सेरेमनी, एनी बुक एग्जीबिशन या इनॉग्रेशन, एनी शॉप का इनॉग्रेशन, स्कूल के आपके इवेंट्स, यानी कि स्कूल के फंक्शंस लाइक एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ये सब जो होते हैं, दे आर ऑल डन ऑन अ लार्ज स्केल। इसमें आपके जो है बहुत सारे लोग आते हैं, द पेरेंट्स कम, द चीफ गेस्ट कम, ऐसे, मतलब जैसे स्कूल वाले में तो सब आते हैं, और मैरिज वगैरह में तो आपके बहुत सारे लोग थे। तो ये वाले जो फंक्शंस होते हैं, इनको हम बनाते हैं, कार्ड भेजते हैं, हम लोग जो है कार्ड भेजते हैं, राइट? एंड द कार्ड में आपके जो है, यू हैव टू काइंड्स ऑफ कार्ड, एक स्कूल का और एक आपके घर का। एक स्कूल का, एक आपके घर का, यानी कि अगर आपके मैरिज सेरेमनी है, हाउस वार्मिंग है, टॉन्चर है, तो वो घर वाला हो जाता है। तो घर वाले में अगर आपके पेपर में क्वेश्चन है, राइट ड्राफ्ट एन इनविटेशन इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इनवाइटिंग द पेरेंट्स, जिसमें प्लूरल लिखा हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस अशोक मेहरा are celebrating the marriage ceremony of their daughter. Mr. and Mrs. Ashok Mehra has bought a new house and they want to invite all their friends. जब ऐसे
प्लूरल में लिखा है हमारा वो कार्ड वाला होता है, वो आपका कार्ड वाला होता है। और उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर आता है मिसेस एंड मिस्टर मेहरा, यानी कि जो भी नाम है। एंड देन इसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब वी कैन यूज कॉर्डियली इनवाइट, सीक योर ग्रेशियस प्रेजेंस, सीक योर डिवाइन प्रेजेंस, हम लिखते हैं। फिर आपके फंक्शन का नाम, मैरिज है तो मैरिज, फिर ऑन, किस दिन, पहले डे आएगा वेडनेसडे, फिर डे आएगा, जगह आएगी, टाइम आएगा, और इस वाले में हम लिखते हैं विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स और RSVP, इस वाले, राइट। और ये जो बुक स्कूल फंक्शंस है, इनमें हमारा लिखते हैं मैनेजमेंट, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट स्टाफ एंड मैनेजमेंट। फिर आप यही वर्ड यूज सकते हो, कॉर्डियली इनवाइट, फिर फंक्शन का नाम, फिर डे, डेट, टाइम, वेन्यू। इसमें जरूरी है जो आपका चीफ गेस्ट है, और इसमें हम लिखते हैं दो आपके जो इश्यू कर रहा है उसका नाम, एंड यहां पर डालते हैं नोट। नोट, आप एक ही नोट याद रखो, कोई जरूरी नहीं है। ब्रिंग दिस कार्ड विद यू, दिस कार्ड एडमिट्स टू, कोई एक याद रखो। तो जब आपके में है योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग, राज किरण पब्लिशर इज इनॉग्रेटिंग अ बुक, तो आपको ये वाला लिखना है, राइट। इन दोनों को हम लोग फॉर्मल में लेकर आते हैं। अब फॉर्मल के अंदर इसी फॉर्मल के अंदर हमारा एक आता जो आप लोग हमेशा गलत करते हो, राइट एन इनविटेशन टू मिस्टर प्रकाश मेहरा, रिनोन्ड आर्टिस्ट। अब इस वाले में हमारा इनविटेशन में क्या लिखा था, क्लास 12, राइट एन इनविटेशन टू ऑल द पेरेंट्स, ड्राफ्ट एन इनविटेशन, draft an invitation inviting all the parents, inviting all। जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तब हमें ऊपर वाला बनाना, लेकिन 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 एक ही नाम दिया है, एक ही नाम दिया है, और उस नाम के साथ there is always already this renowned artist, renowned cricketer, renowned dancer, ये वर्ड्स दिए होंगे। versatile player, जरूरी नहीं है renowned, versatile, famous, एक वर्ड साथ में दिया होगा। तब आपको जो है लिखना है लेटर टाइप इनविटेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस,
डेट, इसमें जरूरी है सब्जेक्ट, एंड योर सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। इनविटेशन to preside annual function, invitation to judge reality show, invitation to host cricket tournament, बस वही आएगा। इन दिस आपको लेटर है, लेकिन आपको लेटर टाइप कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल यू हैव टू राइट व्हाट योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, जो भी ऑर्गेनाइज कर, सिंपल यहीं से स्टार्ट करना। A school is organizing a reality show. फिर when, किस दिन कर रही है, कहाँ कर रही है, मतलब टाइम, वेन्यू, डेट, सब कुछ। Then you are cordially invited to preside the function एज द चीफ गेस्ट। फंक्शन की जगह आप इवेंट भी लिख सकते हो। एज द जज, एज द चीफ गेस्ट, ये वर्ड लिखते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू से acknowledge your presence on my WhatsApp number, on my email ID. Yes, it is always good to make a box in this question. In this question, it is always better. And then the name which is given, and the designation. And please put it in a box. These questions carry presentation. तो बॉक्स में डालेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहे। नेक्स्ट इज आपका, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पेपर में लिखा है ड्राफ्ट एंड इनविटेशन टू, एक इंसान का नाम है और उस इंसान की कोई पहचान भी दी है, तो आपको ये वाला लिखना जिसमें सेंडर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट और ये वाला आएगा। फॉर व्हाट यू आर कॉलिंग, व्हेन, वेयर, और उनको किस पोजीशन पर आप बुला रहे हैं। एंड लास्ट, एक्नॉलेज योर प्रेजेंस ऑन माय ईमेल आईडी या फोन नंबर लिखना जरूरी है। दिस इज आपका, ये इसको फॉर्मल बोलते हैं लेकिन ये लेटर टाइप होता है, और ये तभी लिखा जाता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है। एंड एवरी टाइम दिस क्वेश्चन इज डन रॉन्ग। जब इनवाइटिंग ऑल द पेरेंट्स, मतलब बड़े तौर पे फंक्शन और सबको बुला रहे हैं, तो ये वाला आएगा। नेक्स्ट इज आपका आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इज यही वाला लेटर वाला है, लेकिन सिर्फ हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाते हैं। यू आर मतलब कि आप जो हो अपने फ्रेंड रोहित को बुला रहे हो टू गो टू योर ओल्ड स्कूल, तो आप उसको इनवाइट करो, उसमें भी आप रोहित को करो, लेकिन रोहित आपका फ्रेंड है, कोई वर्सटाइल प्लेयर नहीं है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो सिर्फ आपका दोस्त है, वो सिर्फ आपका कजिन है। तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, सीधा डियर रोहित। फिर आप किस चीज के लिए बुला रहे हो, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई एम विजिटिंग दिल्ली ऑन 20th of March. I am planning to meet all our old friends. I cordially invite you to join this same on today, date, time. Yours friendly or name. Box is optional. No necessity. इसमें आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो। And informal is written when you are calling any one friend,
मतलब है तो फंक्शन तो बड़ा है, लेकिन फंक्शन तो आपका छोटा है, लेकिन आप किसी एक फ्रेंड को जो लिख रहे हो, जैसे आप फ्रेंड्स को लिख रहे हो, 10 जनों के लिए आप कार्ड नहीं बनाओगे। आप अपने अंकल को बुला रहे हो, आपके घर में छोटी सी पार्टी है, आप अंकल को बुला रहे हो कि रात को खाने पे आ जाओ, उनमें हम इनफॉर्मल लिखते हैं। So do not forget to revise the format, because in this you all are always making the mistake. Write an invitation to Mr. Doctor, मतलब कोई एक डेजिग्नेशन है तो ये वाला। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड है, टू योर अंकल है तो ये वाला। तो दिस इज आपका इनविटेशन। नाउ कम्स, इसी इनविटेशंस के हमारे होते हैं रिप्लाईज। Replies, again, it can be formal and it can be informal. अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है तो आप इनफॉर्मल यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया है राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में दिया है राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, तब आपको जो है थर्ड पर्सन में लिखना होता है, यानी कि आपकी जगह आपका नाम जाएगा। मिस्टर Ganesh is glad to receive the invitation for the marriage of on, and then he would be present as per the program, या ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही वुड नॉट बी। तो यहां पे मिस्टर, ही, ये वर्ड्स आपकी यूज होते। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल रिप्लाई, और सिर्फ नीचे नाम आता और कुछ नहीं आता, सिर्फ नेम आता और कुछ नहीं आता। नो यूअर्स, नो फेथफुली। और इनफॉर्मल आपका यही लेटर जैसा, सेम सेम। I am glad to receive the invitation for the marriage of your sister on 15 February at this place. I would be present as per the program. Yeah, due to my boards, I would not be able to join. Accept my wishes for the same. अगर आप डिनायल करते हो और पेपर में लिखा हुआ आता डिनाइंग, एक्सेप्टिंग, तो आपको रीजन भी बताना है और आपको विशेस भी देने हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप जा रहे हो, आई वुड बी प्रेजेंट एज पर द प्रोग्राम, लेकिन अगर आप नहीं जा रहे तो ड्यू टू माई, आपको रीजन बताना है, ड्यू टू माई बोर्ड्स आई वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू, बट एक्सेप्ट माई विशेस फॉर द सेम। If in your exam, in your question paper, if it is clearly written, write a formal reply, तो ही आप थर्ड पर्सन में लिखोगे। दैट इज अपने नाम, मतलब अपनी जगह, आई की जगह अपना नाम। Miss Sudha is glad to receive the invitation for the housewarming ceremony of Mr. Raj on Sunday, the 9th February. She would be present as per the program, या फिर due to her prior appointment she would not be able to join but extended her wishes. So she, her, ये होता formal reply. So this is आपका invitation and replies, and I always suggest all my students to put it in a box to give it a presentation. कार्ड वाले में तो बॉक्स बनता ही बनता है, उसमें तो कोई है ही नहीं, but other also I say put it in a box for a good presentation. That's a presentation. बोर्ड्स के अंदर अभी सीरियसली बोर्ड्स ने, सीबीएसई ने राइटिंग टेक्निक्स का एक वीडियो दिया है। आई डोंट नो इफ यूर टीचर्स हैव शेयर्ड इट विद यू और नॉट, आई डोंट नो, बट दे हैव गिवन इट।
According to that, every step what you are doing, whether it is English or business studies or accounts or maths, you will be awarded. So presentation always has an edge over everything. Right? So this is very important. There are 5 tips they have given for this attempting the paper. That is, there will be marks for every step. That's the first one. So every step should be counted and you will not be missing anything. Then arrange it in the chronological manner. There is always कि सबसे पहला intro, उसके बाद content, to move in that way. Third, presentation, putting the points, web charts, flow charts. If there is any need of any box, वो ये सबको जो है they have taken it. So that would always, this always has an edge over. So I always say it is okay. Box ही तो बनाना, क्या हो जाएगा? It will give you better presentation. Right. Now, in the long one, you have letter writing. पहला. And अगर हम letter writing कहते हैं, तो one is yours editorial. Editorial में you can expect questions like capital punishment. What is capital punishment? Capital punishment होता है आपका when the government of a country, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो डेथ पनिशमेंट देता है फॉर हीनस क्राइम्स. तो दैट कैन बी देयर. देन रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स, regarding the changes in the system, problems of pollution, problems of stray dogs. जब भी आपका कोई एडिटोरियल लेटर आता है, लेटर्स में दोनों में पहला आपका इसमें एप्लीकेशन है और इसमें तो पूरा लेटर है. तो दिस इज आपका, इसका वेटेज तो ज्यादा रहेगा क्योंकि पूरा 5 मार्क्स का. इसके अंदर आपका जो है 3+2 जाता है, तो आपको जो है मार्क्स स्टेप वाइज मिलेंगे. In the editorial or application, the first thing that you write is sender's address. And to be honest, abhi tak there are so many students who are still writing 1, 2, 3, city, town, Delhi. I repeat, this is incorrect. This is incorrect. आपका ये जो 1, 2, 3 और सिटी है ना, ये दोनों साथ में आते हैं. 1, 2, 3, city enclave, Delhi. And then the date, no need of writing the word date. Then the editor, इसमें तो आपको ऐसे रट लेना है. The editor, the T tall E छोट, मतलब ये दोनों कैपिटल लेटर्स. ये सब कुछ आपका फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर आएगा ये सब कुछ. Then the name of the newspaper. See, if you are in Delhi, आपके पास Times of India, The Times of India, The Hindustan Times. Otherwise, if you they say, अभी भी मैंने देखा कुछ बच्चों ने write a letter to the editor of a national daily. तो बच्चे यहां पर उसका नाम नेशनल डेली डाल देते हैं. भैया, नेशनल डेली नाम नहीं है. नेशनल डेली किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है. आप, उनका कहने का मतलब है नेशनल डेली मतलब या तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखो या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स के लेटर को लिखो या द हिंदू के लेटर को लिखो. वो बोल रहे हैं. आई एम रिपीटिंग इट इन इंग्लिश. आई एम सॉरी बट सॉरी हिंदी, बिकॉज अभी भी देयर आर स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द एडिटर नेशनल डेली.
नेशनल डेली किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि यहां पर आपको लिखना है। एंड इफ इन योर क्वेश्चन इट इज रिटन राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ, मतलब कि लोकल डेली, तो लोकल डेली में आप कोई भी नाम आपके मर्जी से डाल सकते हो, समाचार टाइम्स, हिंदू, मतलब कि कोई भी ऐसा नाम डाल सकते हो। इज इट क्लियर? आई शुड नॉट सी दिस मिस्टेक अगेन नाउ इन योर पेपर्स। फिर उसके बाद अगर आपका दिल्ली है तो 20 हिंदुस्तान टाइम्स का है कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली, टाइम्स ऑफ इंडिया का है बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली। लेकिन अगर आपको मतलब कि इफ यू डोंट नो द नेम, राइट एनी नेम ऑफ एनी डोमिनेंट नेम, नेताजी सुभाष चंद्र, ऐसा नाम और सिटी का नाम, देन आपका आता है सब्जेक्ट। एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ऑन, 6 to 7 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। देन आपका ये वाला जो है, दिस शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। इट इज मस्ट मस्ट मस्ट। फर्स्ट इज इंट्रो। Through the new columns of your newspaper, I wish to express my views. फिर वो जो भी आपका थीम है, जैसे मैंने कहा कैपिटल पनिशमेंट, उसको 1 या 2 लाइन में, यहां आपका पूरा डिस्क्रिप्शन आप जो बताना चाहते हो, और यहां आपकी एंडिंग विद सम मेशर्स, आपको कुछ अपनी तरफ से 1 लाइन में लिखना है। देन अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। थैंकिंग यू यूअर्स सिंसियरली, थैंकिंग का टी बड़ा भाई, वाई आपका छोटा भाई, टी बड़ा वाई छोटा, यूअर्स सिंसियरली में वाई बड़ा भाई और सिंसियरली छोटा भाई। तो ये आपको याद रखना है क्लास 12। दिस ऑल विल कम अंडर फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, ये वाला सब कुछ, एंड कंटेंट में आपने जो यहां पर लिखना है, एंड एक्सप्रेशंस में योर लैंग्वेज, योर ग्रामर, दैट विल बी योर एक्सप्रेशंस। नाउ इफ आई गो टू एप्लीकेशन कम बायोडेटा, जो आपने काफी प्रैक्टिस की और आपका फॉर्मेट यही जाता है सेंडर्स एड्रेस, बट यहाँ एडिटर की जगह आप जिस जगह नौकरी अप्लाई कर रहे हो वहां के मैनेजर, वहां के एचआर मैनेजर को लेटर लिखते हो। तो द मैनेजर, उस कंपनी का नाम, वहां का एड्रेस, सब्जेक्ट सिंपल, अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। 3 पैराग्राफ जाएगा लेकिन छोटे छोटे। पहला, how did you come to know about the job? I came across your advertisement in the newspaper column seeking candidates for the post of computer programmer. I hereby extend my candidature for the same. पहला। दूसरा, आपका एक ब्रीफ इंट्रो। ब्रीफ मतलब मैंने लिखवाया हुआ है, आई एम अ पैशनेट, मतलब कि आप एक अच्छे एकेडमिशियन हो, आपकी स्कॉलस्टिक अच्छा है, आपने मतलब कि स्पोर्ट्स में जीता है, आपने कल्चरल फेस्टिवल में जीता है, आपने डिबेट में जीता है, वो। एंड थर्ड कंक्लूजन, इफ आई गेट दिस जॉब, इफ आई एम selected for the post, then I assure I would give my best
for the company. I would leave no stone unturned in proving myself as an asset for the company. वो फिर उसके बाद वही thanking you, yours sincerely, the name and whatever you are enclosing. आपका बायोडेटा, आपका टेस्टिमोनियल्स. नाउ आई डोंट नो बट बायोडेटा अभी तक तो आप लोगों में से किसी ने भी वैसा नहीं दिया जैसा मैं आपको चाहती हूँ. तो आई हैव लेफ्ट ओवर यू बिकॉज 6 to 7 months it has happened. I've been telling about the biodata. मैं तो आज भी अपना बायोडेटा बनाती हूँ. तो आई ऑलवेज मेक इन द सेम सेंस, और रियल सेंस में तो ऐसा ही बनता है जैसे मैं बनवाती हूँ, और ये मैं आपको लिख के देती हूँ. बट अभी भी मेरे को अच्छे अच्छे बच्चे भी ऐसे लिख कर दे रहे हैं. दे आर राइटिंग इन दिस सेंस. ठीक है, अगर आपको मार्क्स नहीं चाहिए तो अब मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी. मैं क्यों बोलूं आपको जब आपको मार्क्स ही नहीं चाहिए, जब आप ये बात समझने की कोशिश ही नहीं रखो कि बोर्ड्स में आपकी टीचर्स नहीं बैठी हैं, बोर्ड्स में इवैल्यूएटर बैठे होंगे, और इवैल्यूएटर वही कहेगा जो मैं आपको बता रही हूँ. सो दिस आई हैव लेफ्ट टू यू, क्योंकि मैं बोल बोल कर थक गई. एंड इवन द टॉप मोस्ट चाइल्ड जो है वो यही लिख रहा है. Nobody has followed my pattern and I have made it sure कि ठीक है मत करो, इट्स ओके. क्या होगा, आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, कटने दो, इट्स ओके. बट when I teach, I definitely tell my students name, father's name, address, nationality, date of birth, then आपका जेंडर, मतलब कि ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपका जाता है. Then educational qualifications, when it comes in the boards you can write in this way. सबसे पहला आपका जाएगा 10th, फिर जाएगा 12th, फिर जाएगा ग्रेजुएशन, फिर जाता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर बीएड है या फिर एमबीए है, वो जाता. तो सिंपल, 10th आपने कहाँ से किया, कितने परसेंटेज में किया. 12th आपने कहाँ से किया, कितने परसेंटेज में किया. ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, कितने परसेंटेज में किया. दिस इज इनफ, मीन्स इनफ. देयर इज नो नीड टू मेंशन आपने कौन से स्ट्रीम से किया, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड सिंप्लीफाई मांगता बट प्रेजेंटेशन पर ध्यान देता. So now the choice is yours, how you want to write. I'll not be giving any comment on this. Then hobbies. अगर एक्सपीरियंस मांगा है इन द क्वेश्चन दैट यू आर दैट कंपनी वांट्स एन एक्सपीरियंस्ड, तो आपको 2 या 3 साल एक्सपीरियंस कहां पर, इन विच कंपनी और किस पोस्ट पर, ये लिखना जरूरी है. अगर लिखा है द कंपनी वांट्स 2 year एक्सपीरियंस, तो 2 years एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी, और आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से आप डाल सकते हो. देन आपका सैलरी ड्रॉन, ये वाला कॉलम तभी आएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है. तो जब आप नौकरी करोगे तभी सैलरी मिलती है. एंड सैलरी एक्सपेक्टेड यू कैन राइट. अगर आपका मैनेजरियल लेवल तो 50-60,000 लिख सकते हो, टीचर है तो 40-50 लिख सकते हो आप, एंड एग्जीक्यूटिव रिसेप्शनिस्ट ऐसा है तो 25-30 लिख सकते. ठीक है. देन आपका रेफरेंस लैंग्वेज, आप कोई भी 3 लैंग्वेजेस डाल सकते हो. रेफरेंसेस, in the references you need to put 2 references. abhi just last week one of my students, Kunal, who was in my institute, got his job in JK Papers. He has completed his MBA. मतलब वैसे तो he was an engineer,
अभी MBA करके उसको जेके, तो he gave my reference, he called me up and he told me. तो रेफरेंसेस में जिसका नाम डालते हो, से डॉक्टर किस जगह पर है और उनका फोन नंबर, देन कोई भी एक और, 2 references we have to. So this is the format, एक्चुअल फॉर्मेट. अगर हम रियल सेंस में भी कल को नौकरी करते तो यही बनता है. वो अलग बात है, आप लोग सब जो करोड़, कौन बनेगा करोड़पति के वारिस हो, आपके पेरेंट्स के पास पैसा है, 2-3 हज़ार रुपए कहीं पे फेंकोगे, आपका बन जाएगा. और आजकल तो वैसे भी भगवान की दया से चैट जीपीटी बना के देगा. बट इन द बोर्ड्स, इफ यू वांट प्रेजेंट, इफ यू वांट मार्क्स, दिस इज अ प्रेजेंटेशन. इफ यू डोंट वांट, आपको जैसे लिखना आप लिख सकते हो. The choice is yours. I'll not be commenting on this. This is because now I'm really fed up with the response. मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बेटा प्लीज ऐसे लिखो. Still I'm getting the same answers. So these were, first of all, we have done notice, invitation replies, and then the letter writing, editorial, 3 paragraphs, एप्लीकेशन कम बायोडेटा. मतलब आपका एप्लीकेशन एक पार्ट है. अगर लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर, तो बिना बायोडेटा लिखे हुए मत आ जाना मेरे क्लास. अगर आपके पेपर में लिखा है राइट एन एप्लीकेशन या अप्लाई फॉर द पोस्ट, ऐसे पेपर में आता है. और मेरे महान बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन लिखकर आ गए थे कि मैम उसमें तो सिर्फ एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला था, बायोडेटा तो दिया ही नहीं है. तो ऐसा नहीं होता है, चाहे आपको वो वर्ड दिया हो ना हो, आपको बायोडेटा जो है देना पड़ता है. अगर क्वेश्चन आया है कि राइट अ रिप्लाई अप्लाइंग फॉर द सेम, या राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर अप्लाइंग फॉर द सेम, तो बायोडेटा छोड़कर आ गया था बच्चा लास्ट ईयर. क्यों? क्योंकि मैम उसमें तो लिखा ही नहीं था कि एप्लीकेशन है. मतलब दैट वाज स्कूल, इसलिए कोई बात नहीं. चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, मेंशन्ड हो या ना मेंशन्ड हो, बायोडेटा तो लिख डालना है साथ में. एंड द नेम, यहां रेफरेंस जैसे लिख रहे हैं डॉक्टर, द पर्सन इज डॉक्टर, एंड वेयर ही इज, मे बी ही इज वर्किंग इन सम हॉस्पिटल, एनी रैंडम, और उसका फोन नंबर. एंड सेकेंड वाले के लिए जैसे मैं लिख रही हूँ मिस्टर, अंकल, कजन, फ्रेंड, और उनका फोन नंबर. नाउ द सेकेंड लास्ट इज आर्टिकल राइटिंग. मैंने देखा था अभी तक जितने बच्चों ने पेपर में दिया है, दे हैव written article writing very nicely, but some students are writing too short. बच्चा आर्टिकल राइटिंग आपका 100 to 120 वर्ड्स में जाएगा, यानी कि 10 to 12 लाइंस आपके हॉरिजॉन्टल पेपर के अंदर आना चाहिए. वी हैव अ मैगजीन एंड वी हैव द न्यूज़पेपर. तो दोनों में कोई फर्क नहीं है. द ओनली थिंग इज इन मैगजीन वी कैन इवन राइट द नेम एट द बॉटम. मैगजीन में हमें ऊपर ही लिखना पड़ता, और दोनों का सेम फॉर्मेट जाता है, टाइटल यानी कि जो आपकी हेडिंग है, एंड देन द आर्टिकल. अ गुड आर्टिकल इज वेयर यू हैव गुड कोट्स. अगर कोई भी 2 या 3 कोट याद रख लो, एनवायरनमेंट पे कर लो, हेल्थ पे कर लो, एंड आप वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हो. लाइक most of the article can have the word like prevention is better than food. then reading है तो reading के लिए आप जनरल में भी बना सकते हो. तो आर्टिकल राइटिंग इज ऑन जनरल टॉपिक्स. आर्टिकल राइटिंग हमारे जनरल टॉपिक्स पे होते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनको हम एडिटोरियल लेटर में लेकर आते हैं. तो जैसे हमने कैपिटल पनिशमेंट बोला, तो यू कैन यूज एनी कोटेशन, 2 या 3 याद रखो, एनीथिंग विच यू फील, एंड यू कैन जस्ट. तो
मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइटल, देन जो उसको लिख रहा है, बाय, ये इन दोनों के मार्क्स हैं भाई. एंड देन स्टार्ट इट विद गुड कोटेशन, start it with good example, and don't start it with the word please don't start it. आप लोग कोई भीष्म पितामह नहीं हो जो पिछले 500-600 सालों से जिंदा हो कि आजकल हो रहा है. आप लोग अभी सिर्फ 17 साल के हो. तो डोंट यूज अ वर्ड नवडेज. नवडेज आप यूज करना चाहते हो सेकेंड पैराग्राफ में यूज करो, नॉट इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. समझ आया? Don't use nowadays starting. Nowadays it has been seen that the children do not follow their. Don't use it. अगर आपको डिसिप्लिन पे आ गया है तो डिसिप्लिन इज अ वर्चू. डिसिप्लिन एक खूबी होती है. अ डिसिप्लिन मैन इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल. अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे यूज करो, अनफॉर्चुनेटली द वर्ड हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग टुडे. फिर जब आप थर्ड फोर्थ लाइन पर आ गए, it is a common complaint that students children are indisciplined. फिर सेकेंड पैराग्राफ आपका जो है उसमें आपके उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, उसके एग्जाम्पल्स अगर आपको देने हैं, ये सब कुछ आपको भरना है. मतलब व्हाट आर द रीजंस फॉर. अभी आई वाज परसों आई वाज लुकिंग एट दिस, एक मतलब की था तो एक reading, मतलब it was about the discipline only, that we say our children are not disciplined, our children are now छोटे छोटे बच्चों को जो है सुसाइडल थॉट्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है दे फील द प्रेशर. तो उन्होंने उसके कॉजेज बताए थे, एंड द कॉजेज वर कि वी डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन. पहले ही होता था कि अगर टीचर ने डांट लगाई है तो द टीचर वाज रिस्पेक्टेड. आज पेरेंट्स कहते हैं ओ कम चलो हम चलते हैं, जाके पूछ के आते हैं उस टीचर से. आज बच्चा बिना पंखे के 2 मिनट नहीं बैठ सकता, बट अर्लियर दे वर फोर्स टू. तो वी वर मेड स्ट्रॉन्ग. जैसे कहते हैं ना, लोहे को, सॉरी, सोने को जितना पकाते हो वो कुंदन बन जाता है. द मोर यू मेल्ट द गोल्ड इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर. सिमिलरली द चिल्ड्रन नीड्स टू बी बिल्ट स्ट्रॉन्ग. तो आप ऐसे कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हो, एंड उसका क्या आगे हो रहा है. Children are not able to cope up with the pressures of life. Today, divorce, today, depression, today, suicide, these have become common. आप उसके इफेक्ट में 2 या 3 डालो. अगर कॉज डाल रहे हो 2 डालो, इफेक्ट डाल रहे हो 2 डालो, एग्जाम्पल दे रहे हो 2 एग्जाम्पल दो. फॉर्मूला आपका 2 2 2 का मानना चाहिए. आ रहा है समझ में? 2 causes 2 effects. एग्जाम्पल दोगे 2 तो उसका आप कॉन्सिक्वेंस दे सकते हो. 2 2 का जाएगा आपका फॉर्मूला. एंड देन थर्ड पैराग्राफ आप उसके मेशर्स बताओ, सल्यूशन बताओ. एंड नाउ द सल्यूशन कैन बी, अब ये नहीं है कि बच्चों को डिसिप्लिन है तो ऐसे मारना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता. वी नीड टू, अब इस थ्रेड को हमें जोड़ना है, पेशेंटली जोड़ना है. तो जो आपको समझ आता है वो सल्यूशन दो, और फिर कोशिश करो एंडिंग इट विद अ कोट. नहीं एंड कर पाते हो तो एक सिंपल लाइन में एंड कर दो, जैसे अ गुड बिगनिंग इज अ गुड एंड. कुछ भी ऐसा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. लेट अस मेक
दिस प्लैनेट ग्रीनर टुगेदर, अगर एनवायरनमेंट की बात ऊपर है, लेट अस मेक दिस प्लैनेट ग्रीनर टुगेदर, लेट अस बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग नेशन, लेट अस कंडेम द क्राइम, ऐसे वर्ड से एंड करो। मतलब कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ऐसे एंड करो। So thus your article is what? आर्टिकल का भी सेम है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? टाइटल बाय लाइन, ठीक है। एंड देन यही हमारा फॉर्मेट है। एंड देन इन द कंटेंट आपका 3 पैराग्राफ्स, पहला इंट्रो, दूसरा डिस्क्रिप्शन एंड तीसरा, हाँ अगर 3 से 4 जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज हाउ अ गुड आर्टिकल राइटिंग इज डन। Last but not the least, I'm also taking up this today itself, रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा कमजोर लगी थी। मे बी आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एंड आई वांट टू प्रैक्टिस इट इन द कमिंग, वो कि आप लोग रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लिखो। नो डाउट आर्टिकल एंड रिपोर्ट में आपको जो है चॉइस मिलेगा, बट नेवर अंडर एस्टिमेट, अंडरमाइन द सीबीएसई क्वेश्चन पेपर। Never underestimate the power of CBSE. कभी दोनों आर्टिकल ही आ गए या दोनों रिपोर्ट आ गए तो आप गए, एंड इट इज वेरी पॉसिबल। हो सकता है दो स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग आउटसाइड दिल्ली, उनका दोनों रिपोर्ट ही आ गया, क्या करोगे? रिपोर्ट इज ऑल्सो एज एसेंशियल एज एनीथिंग एल्स। तो किसी भी राइटिंग स्किल्स पर आप लोग कम ध्यान नहीं दोगे। Now in the report you have newspaper and you have magazine। और रिपोर्ट क्या है? आपका एक आंखों देखा हाल, दिस इज रिपोर्ट। सो द रिपोर्ट इज क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। Now the report can be a simple function, an inauguration, the report can be a tragedy। न्यूज़पेपर में हमारे दोनों तरह के रिपोर्ट्स आ जाते हैं, वेदर इट इज अ ट्रेजेडी और एनी फंक्शन और एनीथिंग। मैगजीन जो स्कूल में होते हैं वो सिर्फ स्कूल से रिलेटेड होते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर एंड कट आपके एग्जाम के पेपर में दिया होगा, राइट अ रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन। तो पहला आपका हेडिंग, पहला आपका हेडिंग, देन बाय, जिसने लिखा है। अगर क्वेश्चन में क्लास का क्लास नेम है, स्टूडेंट एडिटर लिखा है, स्टूडेंट काउंसलर लिखा है, वो सब कुछ ऐड होगा। एवरीथिंग गिवन इन द क्वेश्चन, like you are the student in the student of this, you are the student editor, you are the head boy, वो लिखा होना चाहिए। then what happened, you can directly start। अगर आप इंट्रो देना चाहते हो अलग है, नहीं तो what happened, when it happened, where it happened। the school, आपके स्कूल का नाम आएगा पहले, that is Alpha Public School had hosted a seminar on career counseling for the students of class 12। देन उसको किसने प्रिसाइड किया? द अब आपको अगर नाम किसी का नहीं आता, अपने किसी भी टीचर का नाम रैंडमली लिखो और उनका नाम के आगे लिख दो काउंसलर। द फेमस
counselor Dr. Subhash De presided the function, the event, the workshop. तो ये हमारे फर्स्ट तीन आ गए. व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, कौन आया था. फिर उसमें क्या क्या हुआ था. अब करियर काउंसलिंग में क्या होगा, आपको करियर के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट करियर्स दैट वी हैव. देन हाउ यू कैन अप्रोच, व्हाट इज द इजी वे टू अप्रोच, ये बताया जाएगा, वो लिखो उसमें. फिर हाउ इट एंडेड, उसको एंड कैसे किया. स्टूडेंट्स ने कोई इंटरैक्शन किया, क्विज हुआ. There can be a quiz, there might be an interaction, there might be a Thanksgiving speech. Okay. The Alpha Public School had conducted a career counseling for the students of class 12 on on Monday, the 3rd February, in the school premises. It was presided over by famous career counselor Dr. Subhash De. The chief guest was welcomed with a floral, was given a floral welcome by the principal. Then the chief guest gave his views on the importance of career counseling. He also told about the different careers available for different streams. He told us not to focus on one single career. Every career has its own options and achievements. After this, there was a quiz competition, an interaction, a question answer session, and the seminar ended with a Thanksgiving speech by the principal, vice principal. So this is how any newspaper event is written. लेकिन जब आप यहाँ व्हाट व्हेन वेयर लिख रहे हो, उसमें डेट मेंशन करना होता है, टाइम सॉरी वेन्यू मेंशन करना होता है. बट व्हेन इट कम्स टू द न्यूज़पेपर, अगर आपके में आ गया और आप करना चाहते हो, अभी जब आपके प्रैक्टिस होगा तो ट्राई टू डू इट. जब मैं आपको दूंगी तो आप लोग उसको करने की कोशिश करिए. इन द न्यूज़पेपर you have to first of all give the headings. देन इसमें आपका हमेशा लेफ्ट साइड में जाएगा बाय लाइन. यानी कि बाय लाइन का मतलब क्या होता है, जिसने इसको लिखा, और उसमें आपको दिया होता है यू आर द न्यूज़पेपर करस्पॉन्डेंट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, यू आर द रिपोर्टर ऑफ, यू आर वानी द रिपोर्टर ऑफ, यू आर XYZ द न्यूज़पेपर. तो उसमें आपको वो नाम और उस न्यूज़पेपर का नाम सब कुछ देना है. देन डेट एंड प्लेस. अगर आप डेट यहां नहीं देते हो, आप सॉरी डेट यहां पर देके प्लेस आप स्टार्ट कर सकते हो जहां से आप लिख रहे. यू कैन स्टार्ट इन दिस वे. और डेट हम हमेशा एक दिन पहले का डालते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर हमेशा अगले दिन छप मतलब की पब्लिश होता है. तो वे पुट इट लाइक इफ यू वांट टू, आज हमारा पेपर, कल पेपर है तो आज का हम न्यूज, आज का डेट डाल रहे हैं हम लोग. देन द सेम थिंग नाउ व्हेन इट कम्स टू, ये वाला तो सेम ऐसा ही चलेगा. इफ देयर इज एनी फंक्शन, इवेंट, व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड. बट इफ इट इज अ ट्रेजेडी, किसी जिसमें जैसे अभी आपका वो स्टैम्पेड हुआ है, that will not come, but I'm just saying.
This is a format for all kinds of tragedy. For all kinds of tragedy. कहीं पर भी कोई भी ट्रेजेडी है जिसमें कोई लोग मर गए हैं, दो जने मर गए हैं या सिर्फ इंजर हुए हैं, तो आपको यही ऐसे ही स्टार्ट करना है. एटलीस्ट 3 people वर इंजर्ड, एटलीस्ट 30 people आर फियर डेड, मेनी इंजर्ड. कहाँ पे? स्टैम्पर्ड. फिर वो स्टैम्पर्ड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो बताना है. कैसे हुआ था? when crores of devotees try to barge into the river by breaking the barricade leading to a stampede. उसके बाद क्या हुआ? ये तो आपका था पहला. उसके बाद क्या हुआ? जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल लेकर गए, एंड जो डेड मतलब सबको लेकर गए. एंड देन इट वाज सेड 20-25 people वर डेड ऑन द स्पॉट एंड 5 डेड ऑन देयर वे. द इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड. फिर उसके बाद उसका कॉज जो लोकल अथॉरिटी बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज. उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉम्पनसेशन दिया है, ऐसे में ही कॉम्पनसेशन देती है, आपस के टकरार में नहीं देती है. तो अगर कोई कॉम्पनसेशन है तो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कॉम्पनसेशन ऑफ ₹10 lakh ईच टू द kith and kin of the dead and 5 lakh for those who are injured. ये वर्ड हम लिखते हैं. द this is the word we write. It will come on your screen after 2 minutes. तो आपको जो है, you have to write an if, and then what is the next thing the government has said? Means the government must have also said that it is looking into the matter, it is trying to find out. An FIR has been uh, registered. This is the word which you have, this is the line which you have to write. The government has announced a compensation of ₹5 or 1 लिख सकते हो आप, 10 and 5 लिख सकते हो, to the kith and kin of those dead. ऐसे लिख सकते हो. And then an inquiry has been ordered in the case. तो ये जो लिखा हुआ ना, यू कैन यूज इट एज अ फॉर्मेट. मतलब आप कोई भी ट्रेजेडी आती है तो आप उसमें इस तरीके से यूज कर सकते हो. What happened, and everything is in the past tense. Only when we are ending it, a case has been registered, an inquiry has been ordered, वो हम present में लिखते हैं. Excuse me. So this is how we write a newspaper report. Newspaper report में heading आप इसमें लिख सकते हो stamped. किसने लिखा? बाय. अगर लिखा स्टाफ रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया तो पूरा आएगा, एक दिन पहले की डेट, देन प्लेस, यहां पर आप अयोध्या लिख सकते हो. देन व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, देन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है. एंड बट इफ इट इज अ सिंपल, दो जनों के बीच में कोई हुआ था, ऐसा कोई ऐसा एक्सीडेंट है, तो वहां पर द गवर्नमेंट नहीं आती है, वहां अथॉरिटीज आ जाती है, वहां ट्रैफिक पुलिस आ जाता है. मतलब इफ इट इज ऑन द रोड, ट्रैफिक पुलिस कॉम्पनसेशन नहीं देता, उन्होंने क्या बोला,
and case has been registered and FIR has been registered, ऐसे हम उसको end करते. So this is what we call as report writing. So if you have followed the मतलब कि 1 hour and I think 15 minutes का session properly, your writing section should be as strong as your fist. आपका इतना strong होना चाहिए. बस वो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, लाइक इसके अंदर आप यही वर्ड्स आप यूज कर लो. एंड इस वाले में जब हम स्कूल वाले में लिखते हैं तो नॉर्मली इट इज विद इन द स्कूल ओनली. Then in the article, when it comes to whether magazine or use good quotations, cause effect, 2 and 2 का फॉर्मूला, 2 cause 2 effect, ऐसे यूज कर लो. लेटर में एडिटोरियल एंड आपका आर्टिकल आर सिमिलर, क्योंकि हमारा एडिटोरियल लेटर ही आर्टिकल बनता है. सो फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए. इंट्रो थ्रू दिस लेटर, देन cause and effect, ending, and yours sincerely, thanking you, yours sincerely. Same applies to application also. तो जिसको आप अप्लाई करते हो उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखना होता है. एडिटोरियल में द एडिटर, और एप्लीकेशन का बायोडाटा डेटा में द मैनेजर, द प्रिंसिपल, डिपेंडिंग आप कहाँ कर रहे हो. फिर कंपनी का नाम, फिर एड्रेस, सब्जेक्ट 3. And in the biodata, name, father's name, your date of birth, your gender, your educational qualifications. Then if there is any experience needed, wo salary drawn, expected, hobbies, language, references. And if there is no need of any experience, आप fresher हो, marketing executive हो, internship के लिए है, management trainee है, तो आपको जो है सैलरी ड्रॉन, सैलरी एक्सपेक्टेड वाले कॉलम को जरूरत नहीं है. इन द बोर्ड यू कैन गो विथ 10th 12th ग्रेड्स पीजी. दिस इज यू कैन रिमेंबर इट. और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. 10th है केवी है, 12th है केवी है, ग्रेजुएशन है. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द हिंट्स. पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, एमबीए और ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन. लाइक बीकॉम के बाद एमकॉम भी पोस्ट ग्रेड होता है, बीकॉम के बाद बीएड भी पोस्ट ग्रेड होता है, एमबीए भी. देन इन द शॉर्ट कंपोजिशन यू हैव द नोटिस, use a box, use a scale, and in the invitation, if it is written for all, for the parents, then card type. And if it is write a letter, write an invitation to, एंड उसके साथ कोई रिनोन, वर्सेटाइल, फेमस ऐसा कुछ दिया है तो ये वाला जाएगा, जिसमें सेंडर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट एंड देन सर. और अगर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आ गया तो फिर आप इनफॉर्मल वाला लोगे, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना, सिंपल. तो दिस इज what the revision of writing skills is now over. And now I would मतलब कि expect that this will be completely thorough in your mind. With this, your entire syllabus in all the manner for revision part is also over. Right? Class 12.